हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अभी हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको हमने स्टार्ट किया है और उसी को पहले कंप्लीट करेंगे। और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और उसमें भी सबसे पहले जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Vital energy like coal, crude oil, and natural gas are used to produce thermal electrical energy in India. National Thermal Power Corporation (NTPC) was established in the year 1975. As per the Ministry of Power, the installed power capacity in India by 28th February 2022 was 3,95,607.86 megawatt. In this, thermal energy based on coal had the highest share of 59.6%, that is 2,35,928.72 megawatt. The share of other sectors in the total power generation in India is hydropower. हाइड्रोपावर का कितने का शेयर है? हाइड्रोपावर 46,524.52 megawatt, nuclear power 6,780 megawatt, and non-conventional energy 1,06,374.63 megawatt. Government of India is going to start an ultra mega power project based on coal with Power Finance Corporation as its nodal agency. Uses of supercritical technique is proposed in this project to cut the carbon emission. Each of these ultra mega power project has the capacity of 4,000 megawatt or more. Tata Power is establishing an ultra mega power project in Mundra, Gujarat. In the same way, this project has been initiated at Sasan, Madhya Pradesh, and Krishnapatnam, Andhra Pradesh, Tilaiya in Jharkhand, Giriye in Maharashtra, and Ichur in Tamil Nadu, Tadri in Karnataka, Akaltara in Chhattisgarh, and Shalka Khamaria in छत्तीसगढ़. नेक्स्ट है मराखानम, ठीक है, मराखानाम इन तमिलनाडु, ATC. Neyveli Thermal Power Corporation of Tamil Nadu is the first plant of Southeast Asia working on lignite coal. Neyveli Thermal Power Corporation of Tamil Nadu is the first plant of Southeast Asia working on lignite coal. Lignite is a variety of tertiary category coal. Lignite is a tertiary category coal. NTPC Farakka Thermal Power Plant is situated in Murshidabad district of West Bengal. It gets water from Farakka feeder canal and coal from Rajmahal coal field. Ramagundam Super Thermal Power Station is situated in Telangana. Its total capacity is 2600 megawatt. Obra Thermal Power Station was established in 1971 with the help of Russian engineers in Sonbhadra district of Uttar Pradesh. Bokaro Thermal Power Plant is situated below Konar Dam at Bokaro, Jharkhand. Bokaro Thermal Power Plant is situated below Konar Dam at Bokaro, Jharkhand. Bokaro has two thermal plants. First Bokaro Thermal Power Station was established in 1952 by Damodar Valley Corporation. Second Bokaro Thermal Power Station has 3 production units, the first of which started in 1986. Jamnagar Power Plant 500 megawatt was in Gujarat, is associated with Isar Power, Nabina Nagar, ठीक है, Nabinagar Thermal Power Station in Bihar is operated by Bhartiya Rail Bijli Company Limited, BRBCL. This plant has 49% share of NTPC. Next है Kayankulam Power Plant situated in Alapuzha district of Kerala is functioning under NTPC. Its total capacity is 350 megawatt. हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको
जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें कि हम सबसे पहले जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि जो वाइटल एनर्जी लाइक कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इंडिया। National Thermal Power Corporation (NTPC) was established in the year 1975. As per the Ministry of Power, the installed power capacity in India by 28th February 2022 was 3,95,607.86 megawatt. In this, thermal energy based on coal had the highest share of 59.6%, that is 2,35,928.72 megawatt. The share of other sectors in the total power generation of India is hydropower. Hydropower का शेयर है 46,524.52 megawatt. Nuclear power 6,780 megawatt and non-conventional energy 1,06,374.63 megawatt. Government of India is going to start an ultra mega power project based on coal with Power Finance Corporation as its nodal agency. Uses of supercritical technique is proposed in this project to cut the carbon emission. Each of these ultra mega power project has the capacity of 4,000 megawatt or more. Tata Power is establishing an ultra mega power project in Mundra, Gujarat. In the same way, this project has been initiated at Sasan, Madhya Pradesh, Krishnapatnam in Andhra Pradesh, Tilaiya in Jharkhand, Giriye in Maharashtra, Echur in Tamil Nadu, Tadri in Karnataka, Akaltara in Chhattisgarh, Shalka Khamaria in Chhattisgarh, and Marakkanam in Tamil Nadu, etc. Neyveli Thermal Power Corporation of Tamil Nadu is the first plant of Southeast Asia working on lignite coal. Lignite is a tertiary category coal. NTPC Farakka Thermal Power Plant is situated in Murshidabad district of West Bengal. NTPC Farakka Thermal Power Plant is situated in the Murshidabad district of West Bengal. It gets water from Farakka feeder canal and coal from Rajmahal coal field. Ramagundam Super Thermal Power Station is situated in Telangana. Its total capacity is 2600 megawatt. Next है Obra Thermal Power Station was established in 1971 with the help of Russian engineers in Sonbhadra district of Uttar Pradesh. Bokaro Thermal Power Plant is situated below Konar Dam at Bokaro, Jharkhand. Bokaro has two thermal plants. First, Bokaro Thermal Power Station was established in 1952 by Damodar Valley Corporation. Second, Bokaro Thermal Power Station has three production units, the first of which started in 1986. Jamnagar Power Plant 500 megawatt was in Gujarat is associated with Isar Power. Nabinagar Thermal Power Station in Bihar is operated by Bhartiya Rail Bijli Company Limited (BRBCL). This plant has 49% share of NTPC. Kayanukulam Power Plant situated in Alapuzha district of Kerala is functioning under NTPC and the capacity of Kayanukulam Power Plant is 350 megawatt. Kayanukulam Power Plant situated in Alapuzha district of Kerala is functioning under NTPC and its total capacity is 350 मेगावाट. इसके बाद आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें है मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं अगर हम देखें तो दिल्ली से ऊपर पानीपत, हरियाणा में फरीदाबाद में और हरदुआगंज में, मध्य प्रदेश में पनकी में, परीक्षा में और सिंगरागुली और मध्य प्रदेश में ही जो शासन है वहाँ पर. ठीक है, और उधर हो गया बनकबारी, अहमदाबाद, उकाई और भूसावाल. ठीक है, नासिक ट्रॉम्बे रीजन, गिरिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं. विजयवाड़ा, कृष्णापट्टनम, एन्नौर, नेवेली, तूतीकोरिन, त्रिवेंद्रम. ठीक है, त्रिवेंद्रम, कोराडी और चांदपुर और तालचर,
सुंदरगढ़, संथाल, संथालदीह, दुर्गापुर, देवघर और काकवारा, सिंगरौली, तिलैया, साशान, परीक्षा, पनकी, हरदुआगंज, दिल्ली, पानीपत, फरीदाबाद और ये सभी क्या हैं, उकाई और लोकटक और बोंगाईगांव और नामरूप, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंडिया के मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले है मेजर थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स उकाई थर्मल पावर प्लांट। उकाई थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, गुजरात में है। मेजर थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, सबसे पहले है उकाई थर्मल पावर कॉरपोरेशन इन गुजरात और पतरातू थर्मल पावर प्लांट इन झारखंड, पेंच थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश, दाभोल थर्मल पावर प्लांट इन महाराष्ट्र, उतरान थर्मल पावर प्लांट इन गुजरात, रायचूर थर्मल पावर प्लांट इन कर्नाटका etc। नेक्स्ट है कोथागुंडम thermal power plant of 2520 megawatt capacity is situated in Telangana। कोथागुंडम thermal power plant of 2520 megawatt capacity is situated in Telangana। Uran gas turbine power station is a gas-based power project situated in Raigad district of Maharashtra. It is operated by Maharashtra State Power Generation Company Limited. The share of thermal, hydropower and renewable energy is India's total installed power capacity is 59.6%, 11.8% and 26.9% respectively। क्या बताया गया है लास्ट लाइन में, लास्ट पैरे में, कि द शेयर ऑफ थर्मल एनर्जी का जो इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसमें थर्मल एनर्जी का शेयर कितना है, 59.6%। हाइड्रो पावर एनर्जी का शेयर कितना है, 11.8% और रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है, 26.9% रिस्पेक्टिवली। तो क्या पढ़ा हमने इसमें कि द शेयर ऑफ थर्मल एनर्जी इन इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इज़ 59.6%। हाइड्रो पावर एनर्जी का शेयर कितना है, 11.8%। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है, 26.9%। ठीक है, इन इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। थर्मल एनर्जी से रिलेटेड सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंडर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, बताना है। इडुक्की में थर्मल पावर स्टेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इडुक्की में जो थर्मल पावर स्टेशन है नहीं है। इडुक्की इज़ नॉट ए थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बल्कि इडुक्की में क्या है, इडुक्की इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। ठीक है, और नेक्स्ट है सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ इन केरला। घाट प्रभा इज़ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रामगंगा इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इडुक्की क्या है, इडुक्की इज़ नॉट ए थर्मल पावर प्रोजेक्ट बट इडुक्की इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ इन केरला। घाट प्रभा इज़ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रामगंगा इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने देखा जो इडुक्की है, इडुक्की क्या है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक हाइड्रो पावर स्टेशन है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सबरीगिरी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है दूसरा। और उसके बाद थर्ड है घाट प्रभा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये भी सही है। नेक्स्ट है रामगंगा एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, बिल्कुल सही हैं। इसीलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इडुक्की इज़ नॉट ए थर्मल पावर प्रोजेक्ट बट इडुक्की इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। सबरीगिरी hydroelectric project is in Kerala. Ghat Prabha is an irrigation project and Ramganga is a multi-purpose project. Hence option A is correct. और option A क्या है, पहले को छोड़कर 2, 3 and 4 are correct. ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इडुक्की क्या है, इडुक्की एक हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें क्या है, लोकेशन और उनके स्टेट को मैच करना है, ठीक है। तो उकाई कहाँ पर है, उकाई इज़ इन गुजरात। पतरातू कहाँ है, पतरातू इज़ इन झारखंड। पेंच कहाँ है, पेंच इज़ इन मध्य प्रदेश। एंड दाभोल कहाँ है, दाभोल इज़ इन महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, उकाई कहाँ पर है, उकाई इज़ इन गुजरात, ठीक है। पतरातू इज़ इन झारखंड, पेंच इज़ इन मध्य प्रदेश एंड दाभोल इज़ इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान इज़ ए गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में है। उड़ान दैट इज़ उड़ान गैस टरबाइन power station is a gas-based thermal power plant located in Uran in Raigad district of Maharashtra. The power plant is operated by the Maharashtra State Power Generation Company Limited. Uran is a gas-based power project in Maharashtra. Uran gas turbine power station is a gas-based thermal power plant located at Uran in Raigad district of Maharashtra. The power plant is operated by the Maharashtra State Power Generation Company Limited. Next है question number 4. The largest source of energy in India is, इसका आंसर है coal, ठीक है। According to the website of Power Ministry of Indian Government, India has electricity with a total installed capacity of 3,95,607.86 megawatt. On 28 February 2022, India derives most of its electricity from fossil fuels, primarily from coal. India has 2,35,928.72 megawatt based on thermal energy capacity on coal, which is 59.6% of total capacity. India also derives a considerable amount of electricity from hydropower sources. Currently 46,524.52 megawatt of installed capacity on hydroelectricity. 1,06,374.63 megawatt of installed capacity on renewable energy sources RES and 6,780 megawatt of installed capacity on nuclear sources. तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज़ कोल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द हाइस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज़ ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर टू देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया इज़, तो ये पुराना क्वेश्चन है, अगर हम इनको लेते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन पावर सेक्टर इन इंडिया इज एज फॉलोज. एज ऑन 28 फरवरी 2022 एनर्जी प्रोडक्शन इज, सबसे ज़्यादा है थर्मल में, देन हाइड्रो, देन विंड, देन न्यूक्लियर, ठीक है। सबसे ज़्यादा थर्मल में है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हाइड्रो में होगा, फिर थर्ड नंबर पर विंड पे होगा और फोर्थ नंबर पर न्यूक्लियर में होगा. ये क्या है, एनर्जी सोर्सेज का करेक्ट सीक्वेंस है. सबसे ज़्यादा थर्मल, देन हाइड्रो, देन विंड, देन न्यूक्लियर. As on 28 February 2022, एनर्जी प्रोडक्शन इज़ थर्मल. थर्मल का एनर्जी प्रोडक्शन कितना है, 2,35,928.72 मेगावाट थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन है. हाइड्रो एनर्जी से कितना प्रोडक्शन है, हाइड्रो एनर्जी से प्रोडक्शन है 46,524.52 मेगावाट. हाइड्रो एनर्जी से कितना प्रोडक्शन है, 46,524.52 मेगावाट. थर्ड नंबर पर है विंड एनर्जी. विंड से कितना एनर्जी प्रोडक्शन है, विंड एनर्जी से प्रोडक्शन है 40,129. विंड से कितना प्रोडक्शन है, 40,129.78 मेगावाट. 40,129.78 मेगावाट विंड एनर्जी से प्रोडक्शन है एनर्जी का. नेक्स्ट है न्यूक्लियर. न्यूक्लियर से 6,780 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन है. दस देयर इज़ नो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्स ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन. जो प्रॉपर जो इस टाइम पे है वो ऑर्डर क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द एज ऑन 28 फरवरी 2022 एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है थर्मल में, देन हो जाएगा हाइड्रो में, देन हो जाएगा विंड में और उसके बाद सबसे कम हो जाएगा न्यूक्लियर में. ठीक है,
तो यही करेक्ट सीक्वेंस रहेगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सबसे पहले होगा थर्मल, ध्यान रखिएगा, सेकंड पे हो जाएगा हाइड्रो, थर्ड में हो जाएगा विंड और फोर्थ में आएगा न्यूक्लियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC इन वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन। इसका आंसर है फरक्का। द सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC इन वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड एट फरक्का। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The super thermal electricity plant established by National Thermal Power Corporation NTPC in West Bengal is situated at Farakka. Farakka super thermal power plant is located at Nabarun in Murshidabad district in Indian state of West Bengal. The power plant is one of the coal based power plants of NTPC. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द मैप गिवन बिलो 3 out of the 4 places marked indicated places where a thermal power station is located. The place where there is no thermal power station is marked. यहाँ पे क्या है, इंडिया का मैप दिया गया है, उसमें 1 2 3 4 करके 4 प्लेसेस को इंडिकेट किया गया है। तो उसमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, उसको बताना है। तो ये प्लेस होगा जहाँ पर 2 से इंडिकेट किया है, वहाँ पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं होगा। द प्लेस मार्क्ड 2 इन द मैप इज श्रीशैलम, जो ठीक है, जो श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम, वेर ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तेलंगाना, नॉट ए थर्मल पावर स्टेशन। द प्लेस मार्क्ड 1 कहाँ है, 1 दिखाया गया है गुजरात में क्या है, उकाई थर्मल पावर स्टेशन इन गुजरात। और जो 3 शो करता है, 3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इज़ कोरबा थर्मल पावर स्टेशन इन छत्तीसगढ़। और 4th रिप्रेजेंट कर रहा है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश में जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है 2 पर, जो 2 है ये दिखाता है तेलंगाना के रीजन को। और यहाँ पर जो श्रीशैलम है, श्रीशैलम इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, वो थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज़ फेड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शियरी कोल। द नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज़ लोकेटेड एट तमिलनाडु। इट इज़ द फर्स्ट लिग्नाइट फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। लिग्नाइट इज़ टर्शियरी कोल, दस ऑप्शन बी दैट इज़ टर्शियरी कोल इज़ द करेक्ट आंसर। नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज़ फेड बाय टर्शियरी कोल, टर्शियरी कोल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया, इज सिचुएटेड एट द देन आंध्र प्रदेश। लेकिन अब कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, इसको ध्यान रखिएगा। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये क्या था, पहले आता था आंध्र प्रदेश के रीजन में, लेकिन अब ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और इसकी कैपेसिटी है 2600 मेगावाट। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना। इट्स कैपेसिटी इज़ 2600 मेगावाट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। With the help of which of the following countries thermal power center at Obra was established? तो इसका आंसर होगा रशिया। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन is located in सोनभद्र district of उत्तर प्रदेश, established with the help of Russian engineers in 1971. ओबरा थर्मल पावर स्टेशन is located in सोनभद्र district of उत्तर प्रदेश, established with the help of Russian engineers in 1971. ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रशियन इंजीनियर्स इन 1971। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।